آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں اور ہم پڑھیں گے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اور ہم پڑھیں گے 28ویں آیت سے 40ویں آیت تک، 19واں باب اور 28ویں آیت سے 40ویں آیت تک۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا۔ جب اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیہ کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا، جس پر کبھی کسی آدمی سوار نہیں ہوا، جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ پر جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے اس سے کہا کہ اس بچہ کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچہ پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی۔ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آج کا جو موضوع ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یروشلم میں خداوند یسوع مسیح کا شاہانہ اور اعلانیہ داخلہ ہوتا ہے، اور ہم آج کا جو دن تھا جس کی ہم یاد منا رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے ساری عمر۔ بہت ساری اس میں باتیں ہیں جن کو ہم نے ہر سال سیکھنا ہے، دہرانا بھی ہے اور سیکھتے رہیں گے تاکہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ جانے کہ ہم پام سنڈے کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کھجوروں کا اتوار کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہاں جو میں نے حوالہ پڑھا یہاں کھجوروں کی ڈالیوں کا ذکر نہیں، لیکن جب آپ یوحنا کی انجیل میں پڑھیں گے وہاں ذکر ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ بھی ہے کہ جو حوالہ پڑھا جاتا ہے
ہم سوچتے ہیں یا کئی دفعہ ایک دفعہ بڑے خادم نے کہا کہ میں نے ساری عمر بائبل پڑھی ہے تو میں نے کھجوروں کا ذکر نہیں پڑھا. تو کسی نے اسے فون کر کے کہا کہ تم نے بائبل مقدس میں سے ایک ہی انجیل سے پڑھا ہوگا, ذرا فلاں انجیل سے بھی پڑھ لو. تو بہت بڑا خادم تھا, وہ مجھ سے بھی زیادہ سینئر تھا, تو اس نے ساری عمر یہ کھجوروں کا حوالہ نہیں پڑھا, اس لیے میں نے بتا دیا کہ کھجوروں کی ڈالیوں کا ذکر بائبل مقدس میں ہے. آپ کے پاس جواب ہو, اگر کوئی پوچھے تو کہیں ہاں بائبل مقدس میں لکھا ہوا. اس لیے یہ میں نے بات دہرائی کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بائبل مقدس کو پورا پورا پڑھا جائے. جی چاروں اناجیل میں ہے, تو ایک انجیل سے پڑھ کر, یا شاید وہ ایک ہی انجیل زیادہ پڑھتا ہو. اینی وے, اس لیے میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سوال کرے تو آپ کہیں کہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے دوسری انجیل میں کھجوروں کا کیا ہے ذکر ہے. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور بائبل مقدس میں بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں. یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم جاؤ گاؤں میں, کچھ چیزیں ہم دہراتے ہیں, نئی جنریشن سیکھے, اور گدھی کا بچہ یعنی گدھا بندھا ہوگا, کھول کے لے آؤ, اس پر کسی نے سواری ابھی تک نہیں کی. کوئی پوچھے تو کہنا کہ استاد کو اس کی کیا ہے ضرورت ہے. پہلی بات کہ یہ پیشن گوئی تھی کلام مقدس میں. زکریا نبی کی کتاب میں اگر ہم پڑھتے ہیں 9واں باب 9ویں آیت, تو یہ پیش گوئی کی گئی کہ دیکھو مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے, اور اے بنت سیون للکار اور خوش ہو کہ تیرا بادشاہ آتا ہے جو گدھے پر کیا ہے سوار ہے. یہ پیش گوئی ہے کیونکہ یسوع مسیح نے جو کچھ کیا, جو کچھ یسوع مسیح کا ایکشن تھا, جو کچھ یسوع مسیح نے کہا, جو کچھ یسوع مسیح نے زندگی گزاری, اس کی پیدائش سے لے کر کے اس کے آسمان پر اٹھائے جانے سے, بلکہ دوبارہ واپس آنے سے, تمام بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے, پیش گوئیاں کی گئی ہیں. اس کا ایک ایک دن جو ہے اس کے بارے میں پیش گوئیاں ہیں, لکھا گیا ہے اور شیڈیولڈ ہے. کیوں؟ کہ وہ الہی ذات ہے, خدا کا بیٹا ہے. 7 کلمے جو ہم اب گڈ فرائیڈے والے دن سنیں گے, وہ بھی اس کی بھی پیش گوئیاں پہلے ہی سے ہوئی ہیں. اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں بھی یہ جو پام سنڈے ہے, اس کی بھی زکریا نبی نے کیا کی ہے, پیش گوئی کی ہے. تو اس لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ اچانک کچھ نہیں ہوا, ہر چیز منصوبہ کے تحت اور شیڈیول تھی اور خدا کے منصوبے میں تھا کہ اس طرح ہوگا. اور دوسری بات میں پھر دہراتا ہوں, ہر سال ہم دہراتے ہیں کہ یسوع مسیح نے گدھے کو کیوں پسند کیا, اس پر سواری کرنے کو. گھوڑے کو پسند نہیں کیا, ہاتھی کو پسند نہیں کیا, کیونکہ گدھا جو ہے یہ علامت ہے, سلامتی کی علامت. اس دور میں جو گدھے پر بیٹھتا تھا یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ سلامتی چاہتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے, اور وہ سلامتی اور صلح کا کیا ہے, بادشاہ ہے. اور یسایہ نبی کا صحیفہ 9واں باب 6 آیت میں لکھا ہے, اس کا نام عجیب, مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ, وہ ہے سلامتی کا شہزادہ. اس لیے وہ گدھے پر سوار ہوا. دوسری گدھے کی علامت کیا ہے, وہ یہ ہے کہ گدھا جو ہے وہ لادو
का बच्चा उससे कहा जाता है बाहर उठाने वाला है, बोझ उठाने वाला है। और खुदावंद यीशु मसीह तमाम हमारे बोझ को, हर तरह के बोझ को, हर तरह के गुनाह को अपने ऊपर उठा के सलीब पर मर गया और उसने कफारा दिया। खुदावंद यीशु मसीह, हम इससे सीखते हैं गधे की अलामत से कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह बोझ उठाने वाला है। और हमने एक दफ़ा सीखा था कि वो हर रोज़ हमारा क्या उठाता है, हर रोज़ बोझ उठाता है। हर रोज़ कोई ना कोई चैलेंज होता है। जब हम जागते हैं तो कोई ना कोई मुश्किल होती है। तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह ऐसा है कि वो हर रोज़ ही हमारी मदद करता है, हर रोज़ ही हमारा बोझ उठाता है, हर रोज़ हमें संभालता है, हर रोज़ हमें कुव्वत देता है, हर रोज़ हमें नई उम्मीद देता है, हर रोज़ हमें नई तकवीत अता फरमाता है। ऐसा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। फिर तीसरी अलामत क्या है कि गधा जो है वो साबित कदम है, साबित कदमी की अलामत है। और हमारा खुदावंद यीशु मसीह साबित कदम रहा, जो करने को आया, कफारा देने को आया, सलीब पर जान देने को आया, वो फर्माबरदार रहा। फिलिपियों के खत में लिखा है, अगर दूसरा बाब पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो फर्माबरदार रहा। और लिखा है यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत क्या की, वो साबित कदम रहा। बड़ी आजमाइशों से उसे गुजरना पड़ा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो कोई इंसान पर आजमाइश आ सकती थी, आजमाइश आई, लेकिन उसने आजमाइशों पर भी क्या पाई, फतह पाई। और वो जिस मकसद के लिए आया, साबित कदमी से उस मकसद तक पहुंचा और सलीब पर, इसलिए फिर उसने कहा कि तमाम हुआ, जो मैं करने को आया था पूरा कर दिया। वो फर्माबरदार रहा है। और इसलिए खुदावंद ऐसे लोगों ही को पसंद करता है कि जो सलामती की गवाही देने वाले हों। वो खुद सलामती का शहजादा है। और उसने कहा कि तुम जाके कहना कि उस्ताद को गधे की क्या है। तो आज भी हमें वो चाहता है, उसको हमारी क्या है, कैसे लोगों की जरूरत है। मत्ती की अंजील 5वां बाब क्या लिखा है, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे। खुदावंद आज भी ऐसे लोगों को कहता है मुझे उनकी जरूरत है कि जो सुलह सलामती के दर पे हों। उनकी जरूरत है जो सुलह करवाने वाले हों, इंसान की खुदा के साथ और इंसानों की इंसानों के साथ, और सुलह और सलामती से रहे और सुलह का सबब बने। वो ही मुबारक है क्योंकि वो ही खुदा के क्या कहलाएंगे। आज ऐसे लोगों की खुदावंद यीशु मसीह को क्या है। और फिर साबित कदम रहने की जरूरत है। खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद करता है कि जो साबित कदम रहें। बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है खुदा के पाक कलाम में कि खुदावंद की ये मर्जी है कि हम साबित कदम रहें। बहुत सारी आयात हैं लेकिन खुदावंद पसंद करता है। 1 कुरिन्थियों 15वां बाब लिख लें और 58 आयत यहाँ पर क्या लिखा है, अजीज भाइयों, ये मैं पढ़ देता हूँ। अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो, खुदा के काम में अफजाइश करो, तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। ऐ भाइयों क्या करो, साबित कदम रहो और कायम रहो। और
तुम्हारे काम में, तुम्हारी खिदमत में क्या हो, अफजाइश हो, काम बढ़े, खिदमत बढ़े, और तुम्हारी मेहनत जो है वो खुदावंद में बेफायदा नहीं होगी। ये बाइबल मुकद्दस में लिखे ऐ भाइयों, इसका मतलब पूरी कलीसिया को है ना। ऐ भाइयों जमा का लफ्ज है, यानी सिर्फ खादमों के लिए नहीं, तमाम ईमानदारों के लिए। ऐ भाइयों साबत, खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है, ऐसे लोगों को चुनता है कि जो साबत कदम रहें, साबत कदमी के साथ उसके साथ चलते रहें। आजमाइशें आएंगी, परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, लेकिन बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे, लेकिन खुदा उन लोगों को चाहता है, उन लोगों को पसंद करता है, उन लोगों को सरफराजी देता है, उन लोगों को बरकत देता है। उनकी मेहनत खुदा के सामने कबूल हो जाती है कि जो साबत कदमी से उसके साथ चलते रहते हैं। ऐसे लोगों से खुश नहीं होता जो पल में क्या होते हैं, तोला, और पल में क्या आता है, माशा। पल में जोश और पल में जोश खत्म। साबत कदमी से चलना है? चलते रहना है, चाहे आस्था चलते रहें, लेकिन चलते रहें। और ऐसे लोगों को खुदा क्या करता है, बाइबल के मुताबिक सरफराज करता है। बाइबल के वादे उसके साथ हैं, उनकी फिर कोई मेहनत जो है वो बेफायदा नहीं, उसका फ़ायदा होता है, और खुदावंद अपनी बरकतों से माला माल करता है। और बाइबल मुकद्दस में जो हम पढ़ते हैं, इसलिए कि खुदावंद हमें बरकत देना चाहता है। फिर एक और अलामत है, खजूर की डालियों की अलामत क्या है, ये भी हम सीख लें। क्या है? अगर कोई पूछता है खजूर की डालियाँ, इसका मतलब क्या अलामती तौर पर, तो हम क्या कह सकते हैं, फतह का ये निशान है। जब वो यीशु मसीह दाखिल होता है तो खजूर की डालियाँ वो लहराते थे कि बादशाह है और फातेह है। और हम भी जब ये रस्म करते हैं तो हम इकरार करते हैं कि यीशु मसीह हमारा, जिस पर हमारा ईमान है, वो क्या है, फातेह है। हालेलुया। वो मौत पर फातेह है, खबर पर फातेह है, गुनाहों पर फातेह है, शैतान की सारी कुदरत पर फातेह है। हालेलुया। इसलिए पाम संडे हम मनाते हैं और हम भी नारे लगाते हैं कि यीशु मसीह फातेह है। हालेलुया। और उन्होंने भी नारे लगाए और कहा होशाना। हैं? होशाना का क्या मतलब है? हमें नजात दे। होशाना का मतलब क्या है? यूनानी लफ्ज़ था, हमें नजात। इसका मतलब क्या है कि जब वो यीशु मसीह के नारे भी लगा रहे थे, होशाना होशाना, मुबारक हो जो खुदावंद के नाम पर आता है, तो वो साथ बादशाह भी कबूल कर रहे थे और उसे नजात दहिंदा कबूल कर रहे थे। और हम भी आज यीशु मसीह को बादशाह मानते हैं और नजात दहिंदा मानते हैं। हालेलुया। और नजात दहिंदा एक ही है। हालेलुया। क्योंकि आसमान के तले और ज़मीन पर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। आज हम सेलिब्रेशन से ये इजहार कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा है, यीशु मसीह दुनिया का नजात दहिंदा है, यीशु मसीह ही वाहिद नजात दहिंदा है जो इंसान को, गुनहगारों को उनके गुनाहों से नजात दे सकता। तो ये बहुत बड़ी मुबारक याद है कि जो हम अपनी नस्लों को बताएं कि पाम संडे की इबादत का मतलब क्या है, इससे हम क्या सीखते हैं, क्या हम याद करते हैं और क्या हम बरकतें हासिल करते हैं। और फिर बाइबल मुकद्दस में और हम एक बात सीखते हैं
कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैंने पूरा हवाला इसलिए पढ़ दिया ताकि आप डराओ कि वहाँ जो जिन्होंने मौजज़ात हासिल किए, ये गौर से सुने, जिन्होंने बरकतें हासिल की यीशु मसीह से, वो तो नारे लगा रहे थे, वो तो कह रहे थे होशाना, वो तो कह रहे थे ये बादशाह, वो तो कह रहे थे मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, वो चिल्ला रहे थे, शोर डाल रहे थे, नारे लगा रहे थे। लेकिन उसी दौरान फरीसी लोग जो थे, मजहबी जो लोग थे, लीडर, उन्होंने यीशु मसीह को कहा, यह हवाला मैंने पढ़ दिया है, यीशु मसीह को क्या कहा, ए उस्ताद अपने शागिर्दों को क्या कर, डांट कि ये चुप लेकिन जिन्होंने बरकत हासिल की, जिन्होंने मौजज़ात हासिल किए, जिनका ईमान यीशु मसीह पर था, उसे बादशाह मानते थे, उसे नजात दहिंदा मानते थे, उन्हें कोई चुप करवा नहीं सकता था। वो तो नारे लगा रहे थे होशाना होशाना, उन्हें कोई चुप नहीं करवा सकता। जिन्होंने बरकत यीशु मसीह से पाई है, वो कभी खामोश रह सकते हैं, कभी खामोश नहीं रहते, चाहे चुप करवाने वाले कितने हों या हालात ही हों जो हमें चुप करवा दें, या खौफ और डर हो जिससे हमें चुप करवाने की तरगीब दी जाए कि चुप हो जो, खामोश हो जो, या कई लोग ही हैं जो हमें चुप करवाना चाहते हैं लेकिन ईमानदार चुप होते हैं, कभी चुप नहीं होते। वो तो उसकी सना में गाएंगे हालेलुया, वो तो उसे जलाल देंगे, वो तो उसके नारे, वो तो खजूर की डालियां पकड़ के कहेंगे होशाना होशाना, वो तो इजहार करेंगे, वो तो उसकी इबादत करेंगे, वो तो उसकी पैरवी करेंगे, और उन्हें कोई भी दुनिया की ताकत, शैतानी कुव्वतें या कोई इंसान उन्हें खुदा की हम्दो सना करना और इबादत करना और पैरवी करना और नारे लगाने से रोक नहीं सकता, ना वो चुप हो सकते हैं। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि अगर ये चुप हो जाएं, है ना, तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। तुम कहते हो कि ये चुप हो जाए, मेरी तो गवाही में क्या हो जाएंगे, पत्थर भी चला उठेंगे हालेलुया। और पत्थर चलाए, कब चलाए पत्थर, कब चलाए, जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो लिखा है चट्टानें तिड़क गई। उन्होंने भी गवाही दी कि यीशु मसीह ने जान दी है, कफारा दी, लिखा है। यीशु मसीह ने जब जान दी तो चट्टानें तिड़क गईं और भूचाल आ गया है, सारी कायनात जो है उसने रिएक्शन दिया, उसने रद्द अमल दिया। उसने कहा ये तो मेरे लोग, इन्होंने तो रद्द अमल देना ही देना है, लेकिन सारी कायनात रद्द अमल देगी, क्योंकि वो खुदा है, वो तो कायनात को बनाने वाला है और डिवाइन पावर से यीशु मसीह की वो भी गवाही देते हैं, उसका जलाल जाहिर करते हैं। और ये वैसे कायनात, आपको इल्म इलाहायात की बात कहता हूँ, ये भी आम मुकाशवा है। ये जो कायनात उसने बनाई, चांद सूरज सितारे और ज़मीन पहाड़ समुंदर, ये भी मुकाशवा है खुदा का। लेकिन हम इसे जो थियोलॉजी में कहते हैं ये आम मुकाशवा है, ये भी उसका जलाल जाहिर करते हैं खुदावंद का। यीशु मसीह ने कहा इनको चुप क्या करवाना है, सारी क्रिएशन जो है और चट्टानें भी और पत्थर भी चिल्ला उठेंगे और गवाही देंगे कि यीशु
बादशाह है। हालेलुया। और हम गाते हैं, कभी कभी हम उस पर उसे कबूल नहीं करते हैं। अगर मैं लिखवा देता हूँ, ज़बूर 19वां पहली आयत में लिखा है, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है। और फिर अगर हम पढ़े 69वां ज़बूर 69 और उसकी 34वीं और 35वीं आयत भी पढ़ें तो लिखा है, आसमान और ज़मीन उसकी तारीफ करेंगे। लफ्ज़ लिखे हुए हैं, समुंदर और जो कुछ उनमें चलता है, क्योंकि खुदा सयून को बचाएगा। फिर ज़बूर 148 में, जो हम अक्सर गाते हैं लेकिन कभी कभी गौर नहीं करते, वो कहता है, ऐ फरिश्तों, फिर कहता है, ऐ सूरज, ऐ चांद, ऐ सितारों, ऐ फिजाओं, ऐ आग, ऐ औलो, ऐ बर्फ, ऐ कोहर, ऐ तूफान, ऐ हवा, ऐ पहाड़ों, ऐ टीलों, मेवादार दरख्तों, जानवरों, चौपायों, परिंदों, जमीन के बादशाह, हाकम, उमरा, जवानों, कंवारियों, बुड्ढों, सब खुदा की हम्द करो, क्योंकि खुदावंद मालिक है इंसानों का भी और सारी क्रिएशन का। यीशु मसीह ही के वसीला से सारी कायनात को पैदा किया गया। और फिर ये लिखा है, ना सिर्फ उसने पैदा किया बल्कि बाइबल में लिखा है कि उसके लिए पैदा किया गया, ताकि उसका जलाल, आम मुकाशफा जो है, उससे हम जान जाएं कि खुदा कितना अजीम है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा है और बादशाह है और निजात है। जब यीशु मसीह पैदा हुए उस वक्त भी कायनात ने काम किया है, सितारा चला, उन्होंने सितारे ने रहनुमाई की, मजूसियों की ना, दलील है ना। और सितारा देखो उसके सारे हुक्म मानते हैं। ये डिवाइन पावर है खुदावंद यीशु मसीह की, क्योंकि आम इंसान तो पैदा नहीं हुआ, यीशु मसीह पैदा हुआ है। उनको तख्लीक करने वाला पैदा हुआ है, तो उसका सारी कायनात हुक्म मानती है और उसकी गवाही देती है, लेकिन डिवाइन पावर से। और बाइबल मुकद्दस में हम यहाँ ये भी देखते हैं कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो फरिश्तों ने हमदो सना में गाया, आलम बाला पर क्या हो, बोले ताकि आप जागते रहें। क्या लिखा है, बड़ी मशहूर आयत है, आलम बाला पर खुदा की क्या हो और आदमियों में जमीन पर उनसे क्या हो, सुलह। ठीक है। और बाइबल मुकद्दस में मैंने आपके सामने क्या पढ़ा है, क्या लिखा हुआ है कि यहाँ भी जब बादशाह आता है तो यहाँ भी लिखा है कि आलम बाला पार सुलह। यहाँ भी मैंने जो विरद पढ़ा है बाइबल मुकद्दस का, आपने सुना इसमें कि उस वक्त भी जब यीशु मसीह दाखिल होता है तो आसमान पर तस्दीक हो रही है, आसमानी लश्कर जो हैं हम्द कर रहे हैं, फरिश्ते गा रहे हैं और नजात दहिंदा की खुशी में ये जानते हैं कि ये नजात का काम क्या करेगा, पूरा करेगा। उसकी पैदाइश पर भी और पाम संडे के वक्त भी, क्योंकि वो इलाही शख्स है। हम बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इंसान नहीं, वो खुदा है, खुदा का इकलौता बेटा है। और जब दाखिल होता है तो सारी कायनात और सारे ईमानदार नारे लगाते हैं, खुश होते हैं, शादमान होते हैं, इकरार करते हैं कि बादशाह है, इकरार करते हैं कि नजात दहिंदा है। और मैं ये भी कहूँगा कि ये खजूर की जो डालियाँ हैं, मैं हवाला लिखवाता हूँ लेकिन पढ़ता नहीं हूँ। बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब
7वां बाब 9वीं आयत से 12वीं आयत में लिखा है, पाम संडे के वक्त ईमानदारों ने खजूर की डालियां हाथ में ली, जिन्होंने बरकत पाई, जिन्होंने मौजे देखे, फतह के नारे लगाए। मुकाशवा की किताब में भी लिखा हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ को देखा है। ये पढ़ ले, मैं पढ़ता नहीं, लिखवा देता हूं। बहुत बड़ी भीड़ और हाथों में खजूर की, ये मुकाशवा में लिखा है, यहां भी खजूर की डालियां लहरा रहे हैं और फतह के नारे लगा रहे हैं कि खुदावंद का बड़ा ही जो है वो फातेह है और वो ही नजात दहिंदा है। ये अलामती तौर पर लिखा गया है कि ईमानदार ना सिर्फ जमीन पर खजूर की डालियां लहराएंगे अलामती तौर पर, बल्कि आसमान में भी अलामती तौर पर फतह के नारे लगाएंगे और बरा की हम्द में गाएंगे। और यहां पर लिखा है कि 24 बुजुर्ग भी शामिल हैं, चारों जानदार भी शामिल हैं और तमाम बहुत बड़ी भीड़ जो मुख्तलिफ कौमों, अहले जुबान से, अहले कबीला से इकट्ठी हुई है, खुदा ने बनाई है। और 12 जो बुजुर्ग हैं वो भी तमाम के तमाम नारे लगा रहे हैं, फतह के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि ये आज भी फतह का दिन है, आज भी शादमानी का दिन है। पाम संडे आज भी इसलिए फतह के दिन है कि यीशु बादशाह दाखिल हुआ, हालेलुया। और आज भी ईमानदार डालियां लहराते हैं, हम्द व सना करते हैं। और आसमान पर भी लिखा है, ये अलामती जुबान है कि ईमानदार वहाँ भी बरा के सामने खड़े होके फतह के गीत गाएंगे, खुशी के गीत गाएंगे और नजात के गीत गाएंगे। तो इसलिए यहाँ प्रैक्टिस करें ना हम, है ना? यहाँ प्रैक्टिस होगी, है ना? तो फिर हम वहाँ भी हमदो सना गाएंगे, हमदो सना करेंगे, फतह के गीत गाएंगे, नजात के गीत गाएंगे। और अगर यहाँ ही प्रैक्टिस ना हुई तो वहाँ फिर हम गाएंगे। यहाँ प्रैक्टिस हमने करनी है। और हम शुक्र करते हैं खुदावंद का कि ईमानदार पूरी दुनिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बादशाह को वेलकम कर रहे हैं, बादशाह का इस्तकबाल कर रहे हैं, बादशाह की हमद के गीत गा रहे हैं और इकरार कर रहे हैं कि यीशु मसीह नजात दहिंदा है, और इकरार कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारा बादशाह है। इसलिए हमारा दिल आज बड़ा खुशी से, और जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपके चेहरों से आज ये नज़र आता है कि आपके दिल पूरे जोश से भरे हुए हैं। वो भी जोश से भरे हुए थे, कोई चीज़ उन्हें चुप ना करवा सकी। आपको भी कोई चीज़ दुनिया की चुप ना, आप चुप हो सकते हो ईमानदार, और ना कोई दुनिया की चीज़ आपको चुप नहीं करवा सकते। हालेलुया, क्योंकि हम खुदावंद के पैरोकार हैं। वो हमें कुव्वत देता है, ताकत देता है, बोझ उठाता है, हमारी फिक्र करता है। और आइए हम नस्ल दर नस्ल ऐसी सेलिब्रेशन करके खुदावंद को भी जलाल दें और अपनी नस्लों को भी बताएं कि आज के दिन से क्या मुराद है, क्या मतलब है, क्या मकसद है। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और आइए हम अपने बादशाह के लिए फिर से जोरदार तालियां बजाएं, वो इस लायक है। हमद, तारीफ और इस्तकबाल के लायक सिर्फ यीशु मसीह है।